સૌથી પહેલાં તો આપ સૌ મીડિયાકર્મીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજની અમારી પ્રેસ કોન્ફરન્સ અને આભાર સભા જે હતી એમાં તમે જે આવીને અમને જે માન આપ્યું છે એના બદલ તમામનો મીડિયાકર્મીઓનો ધન્યવાદ. લોક જનશક્તિ પાર્ટી રામવિલાસ દ્વારા દાદરા નગર હવેલીની આંબોલી, સુરંગી અને ખેડી પંચાયત 3 પંચાયતો પર અમારા સભ્યપદના કેન્ડિડેટો તથા સુરંગીની આંબોલીની અંદર અમારા સરપંચ પદના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકન કરેલું હતું. જે ટોટલ સભ્યપદની અમે જે ફોર્મ ભર્યા હતા એ 6 હતા અને એક સરપંચ પદ માટે હતું, જેમાંથી 5 કેન્ડિડેટો અમારા જીતીને આવ્યા છે. પાર્ટીની રણનીતિ એકદમ ક્લિયર હતી. પાર્ટી જે કાર્યકર્તાઓ ઘણા સમયથી પાર્ટી જોડે જોડાયેલા હતા અને જે જગ્યાએ પાર્ટીનું પોતાનું સંગઠન મજબૂત હતું એ જ જગ્યાએ પોતાના કેન્ડિડેટો ઉતારવાનું કામ કર્યું છે. કોઈપણ જગ્યાએ જે જગ્યાએ અમારું સંગઠન ન હતું કે નાના પાયે હતું એ જગ્યાએ અમારા કોઈપણ કેન્ડિડેટો અમે ઉતાર્યા નહીં અને ખોટો દેખાવો કરવામાં પાર્ટીની વિચારધારા છે નહીં અને એના માટે જ અમે અમારી જે પંચાયતોની અંદર અમારું સંગઠન જ્યાં મજબૂત છે તેટલા જ પંચાયતોની અંદર અમે ઇલેક્શન આ વખતે લડ્યા છે. આવનાર દિવસોમાં તમારી પાર્ટીની શું રણનીતિ રહેશે અને આ જે જીત્યા છે એ બીજા વિસ્તારમાં બી રીતે પાર્ટીને વધારવાનું કામ કેવી રીતે કરશો? જેમ તમે કદાચ મારું ભાષણ દરમિયાન તમે અવેલેબલ હતા હશે તો મેં બહુ જ ક્લિયર મારા કાર્યકર્તાઓ તથા પદાધિકારીઓને મેસેજ આપ્યો છે કે દરેક કાર્યકર્તાની જિમ્મેદારી રહેશે કે પોતાની સાથે 5 નવા કાર્યકર્તા જોડવાનું અને સાથે સાથે તમામ પદાધિકારીઓને એક નિર્દેશ આપ્યા છે કે તમામ પદાધિકારીઓ 15 કાર્યકર્તા જોડીને પાર્ટીની તમામ દાદરાનગર હવેલીની પોતાના તમામ એરિયાની અંદર સંગઠન મજબૂત કરી અને પોતાના કાર્યકર્તાઓને મજબૂત કરવાનું કામ કરશે. શું આવનાર દિવસોમાં લોકસભાના કેન્ડિડેટ તરીકે બી પોતાના ઉમેદવાર ઉભો કરશો? અમારું કામ છે હાલમાં તો સંગઠનને મજબૂત કરવાનું. લોક જનશક્તિ પાર્ટી જેમ તમે જાણો છો કે કેન્દ્રની અંદર કેન્દ્ર સરકાર જોડે એનડીએના ઘટક દળ તરીકે કામ કરે છે. તો આગામી દિવસોમાં અમારું સંગઠન કેટલું પ્રદેશની અંદર મજબૂત છે, કેવી રીતનું છે એ ભવિષ્યના ગર્ભમાં છે. આગળ જે રીતની બી અમારી લોકલ ટીમ અને જે રીતનું અમારું સંગઠન આગળ જતાં મજબૂત થશે એ પ્રમાણે અમે આગળના નિર્ણય લઈશું કે લોકસભાનું ઇલેક્શનની અંદર લોક જનશક્તિ પાર્ટી લડશે કે કેવી રીતની આગળની રણનીતિ રહેશે. આવનાર દિવસમાં કોઈ મોટો કાર્યક્રમ કોઈ મોટા નેતા જેમ મેં અત્યારે મારા ભાષણ દરમિયાન કહેવામાં જે ચૂકી ગયો હતો એ પ્રમાણે મારા તમામ કાર્યકર્તાઓ લોક જનશક્તિ પાર્ટીના જીતેલા અને લગભગ 100 જેટલા કાર્યકર્તાઓ માનનીય ચિરાગ પાસવાનજી જે અમારા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે એમને દાદરાનગર હવેલીમાં વિઝિટ માટે 1 દિવસની વિઝિટ માટે બોલાવવા માટે જઈશું અને ઉમ્મીદ છે કે ખૂબ જ જલ્દી પાર્ટીનો ખૂબ મોટો કાર્યક્રમ પ્રદેશમાં તમને આગામી દિવસોમાં જોવા મળશે. लोक जनशक्ति पार्टी जैसे दिल्ली लेवल पे देखा जाए तो भाजपा को समर्थन करती है, यहाँ पर तो भाजपा के विरोध में उतर के उनके साथ में लड़ाई किया और कहीं न कहीं आपके कैंडिडेट जीते भी. तो यहाँ पर आने वाले दिनों में क्या आपका जो कैंडिडेट जीते हैं या भाजपा में समर्थन करके काम करेंगे या फिर आप अलग रणनीति से काम करेंगे? थोड़ा सा मैं इसका आपको हट के जवाब दूँ तो लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पे जहाँ पे नहीं लड़ी है वहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरी तरह से पूरी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जो भी मेहनत कर सकते थे उसी रूप में हमने एनडीए के घटक दल के रूप में ही काम किया है और जहाँ जहाँ पे चुनाव हुआ वहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरी तरह से उसके कार्यकर्ता जहाँ जहाँ पे अवेलेबल थे उन्होंने बीजेपी को ही समर्थन दिया है. आप जैसे जानते हैं कि किसी भी जगह पे किसी भी पार्टी को बड़ा होने के लिए या संगठन को विस्तार करने के लिए चुनाव में उतरना जरूरी है. तो मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा हम वहीं पे लड़े हैं जहाँ पे हमें लगता था कि हमारा या तो संगठन मजबूत है और आप देखोगे तो हमारा 90% का स्ट्राइक रेट रहा है. चिराग पासवान जी हमेशा 100 आउट ऑफ 100 करते हैं, हम 10% पीछे रह गए बट 90% का स्ट्राइक रेट रहा है. हम जहाँ पे भी लड़े हैं वहाँ पे जीते हैं. सो हमने यही कहा है कि इसमें बीजेपी के अलग जाके लड़ने वाली बात नहीं है बट हमारे संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक चुनाव में भाग लिया. नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपका जो कैंडिडेट अभी जीते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के उनके जो कार्यालय है उनका जो रूपरेखा रहेगा उसी हिसाब से काम करेगी या फिर आपकी अलग रणनीति रहेगी काम करने की? देखिए अभी जो हमारे कैंडिडेट जीते हैं वो पंचायत के सदस्य रूप के रूप में जीते हैं और जहाँ जहाँ पे भी आप देखोगे वहाँ पे सारी पंचायतें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं.
तो हम लोग हमारी जो रणनीति रहेगी आगे की वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के प्रदेश की जो पंचायतों पे हमारे लोग जीते हैं वहाँ पे मिल के लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम है। ये लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसके अंदर महत्वपूर्ण ये रहता है कि लोगों की जो समस्या है उसको कैसे निपटाया जाए, तो हमारा फोकस उस पर ज़्यादा रहेगा। अच्छा, जैसे देखा गया इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो पब्लिक के बीच में रहा कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ। क्या आपकी, जैसे आपने बताया कि 6 आपका कैंडिडेट मैदान में थे, तो क्या इससे ज़्यादा फॉर्म भरा गया था या फिर आपका 6 था और 6 का 6 मैदान में थे? देखिए, हम लोगों ने टोटल 9 फॉर्म भरे थे। 3 जो रिजेक्ट हुए वो तीनों फॉर्म हमारी ही तकनीकी खामियों की वजह से रिजेक्ट हुए। तो मुझे नहीं लगता, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रशासन की कहीं पे जानबूझ के या निजी तौर पे किसी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ये भ्रामक बातें हैं। कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक भ्रामक बातें चलाई जा रही है, उसी स्तर पे उन्होंने यहाँ पे भी ये भ्रामक बातें फैलाने का प्रयास किया। प्रशासन ने पूरी तरह से, मैं ये मानता हूँ, ट्रांसपेरेंसी से चुनाव करवाया है, और ट्रांसपेरेंसी से हुआ तभी तो हम लोग भी चुनाव जीते ना, नहीं तो हमारे फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाते। हम तो ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे फॉर्म रिजेक्ट हुए। तो ये कांग्रेस के द्वारा उपजाई हुई भ्रामक बातें हैं जिसका कोई मोल नहीं है, और प्रदेश की जनता इसको भली भांति जानती है। और कांग्रेस का कोई पूरे देश में जिस तरह से कोई भविष्य नहीं है, उस तरह से प्रदेश में भी कोई भविष्य मुझे नहीं नजर आ रहा। राजन भाई, जेपीआर एनडीए का प्रमुख हिस्सा है और यह बुनियाद काफ़ी मजबूत साबित किया है जेपीआर ने। दादरा नगर स्वराज चुनाव में खास करके कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, उत्साह है। इसको व्यापक रूप देना जिम्मेदारी नेतृत्व की है, प्रदेश नेतृत्व की है। इसके लिए आगे की क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? देखिए, कुछ ही समय में जैसे हमने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ता माननीय चिराग पासवान जी को प्रदेश में बुलाने की ओर जाएंगे, और प्रदेश में हमारा जो आगे का जो रणनीति है उसमें हम लोग ने ये तय किया है कि हर पंचायतों में पार्टी के कम से कम 25 सक्रिय कार्यकर्ता अवेलेबल हो, जिससे कि हर पंचायतों में पार्टी अपने दम पे आगे चुनाव लड़ सके और अपने दम पे सरपंच, सभ्य, जिला पंचायत और नगर पालिका के भी आने वाले समय में चुनाव लड़ सके। तो पार्टी का एक ही मकसद है, संगठन को मजबूत करना। एलजेपीआर ग्रामीण विस्तार में तो आगाज कर चुका है, अब शहरी विस्तार में उसका इंतजार है लोगों को कि शहरी विस्तार में बहुत जल्द ही इस पार्टी को अपना व्यापकता फैलाएगी। तो उसके लिए क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी शहरी विस्तार में भी उसका एग्जिस्टेंस है ही, लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इस बार हम लोगों ने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, अगर शहरी विस्तार में हम लोगों ने भाग नहीं लिया, उसका एक मुख्य कारण यही था कि हम लोगों ने जहां हमारा संगठन मजबूत था वहां पे किया। बट बेहद जल्द आप सिलवासा के अंदर भी, शहरी विस्तार में भी आप हमारे संगठन को मजबूती की और देखेंगे, और आप सबकी दुआ रही, आशीर्वाद रहा, तो डेफिनेटली हमारी पार्टी यहाँ पे शहरी विस्तार में भी ग्रो करेगी। तो मान के चला जाए कि एलजेपी जितने भी आपके कैंडिडेट जीते हैं, ये पूरा समर्थन रहेगा बीजेपी गवर्नमेंट को? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारी पार्टी सेंट्रल में भी अलायंस में है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोगों ने जो चुनाव लड़े हैं वहाँ पे मजबूत थे, इसीलिए लड़े हैं, और हमारी पार्टी उनके साथ मिल के लोगों की समस्याएं का जो भी निराकरण कर सकते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। थैंक यू।